for a good cause, and I really thank God, and we are so thankful for so many testimonies, and I'm sure बहुत सारे और भी हैं, and I thank God for this wonderful time that God has given to each one of us so that we can come and share His goodness among all His people. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों में अपनी आशीषों को रखा है और हम सबको एक दूसरे के साथ इन आशीषों को बांटने का मौका दिया. You know, and when we think about 2023, from the very first day to this last day, God has been so good to us, and God's grace is evident in each one of our lives. और यदि हम 2023 साल को देखते हैं, शुरू से लेके आज तक के दिन में परमेश्वर हम सब के साथ बहुत भला रहा है, हम सबके जीवन में उसने बहुत काम किया. You know, in each aspects of our lives, I'm sure that even in your spiritual, physical, financial, marriage, family, children, in every areas of your life, I am sure that God has been so faithful to you. हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे आत्मिक रीति से बढ़ना हो, चाहे हमारे बच्चों का हो या हमारे जीवन के बाकी सारे एरियाज हैं, उन सब में परमेश्वर ने हमको आशीष दी. And you know, that's the reason that we stand here and we testify God, that we thank Him for His goodness in our lives. और यही कारण है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसके नाम की गवाही देते हैं जो कार्य उसने हमारे जीवन में किए. No, I'm sure that we all understand and we all have this strong belief in our mind that God is so good to us. और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे हर एक के हृदय में और हमारे मनों में इस बात की पुष्टि है कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत अच्छा है. You know, when we think His goodness in our lives, you know, our heart will be filled with thanksgiving only. और जब हम परमेश्वर की अच्छाई अपने जीवन में सोचते हैं तो हमारा हृदय जो है वो धन्यवादित हो उठता है. We cannot return the favor that God has given on us by giving Him something else other than thanksgiving. परमेश्वर ने जो हमको दिया है उसके बदले में हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ इसके कि हम उसका धन्यवाद. So my dear church, whenever you have an opportunity, you know, like some people were sharing, they were sharing about God with their friends. You know, it's very important for us to share God with each and every one. तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब भी आपको मौका मिले, जैसा हमने गवाही में भी सुना कि परमेश्वर को दूसरे लोगों के साथ बांटना जरूरी है, अपने दोस्तों के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ बांटना बहुत जरूरी है. You know, so today's sermon, I have also given a topic like reasons to be thankful. तो आज का जो वचन है उसका विषय भी हमने यही रखा है कि वो कारण जिसके लिए हम परमेश्वर के धन्यवाद. You know, you all had shared your own experiences and your own reasons to give thanks to God. और आप सब ने अपने अपने जीवन की उन गवाहियों को शेयर किया है, उन कारणों को शेयर किया है जिसके लिए आप परमेश्वर के धन्यवाद. But I also want to share few points. You know, it will be just a quick meditation, a thought for your mind to ponder upon. और मैं भी आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स बांटना चाहूंगा जिसके ऊपर आप मनन कर सकते हैं. And these things are from Bible, and it's a very important for our spiritual life. और ये जो बातें हैं ये वचन में से ली गई हैं और हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए ये बहुत जरूरी है. Open your Bibles to Ephesians chapter 1. अपनी बाइबल आप खोल लीजिए, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, Verse 3 to 10. This will be the portion from which we are going to meditate today. और उसकी 3 से लेकर 10वीं आयत तक हम आज मनन करेंगे. Ephesians 1, 3 to 10. इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 3 से लेकर 10 आयत तक. Are we all there? खोलिए हमने. You know, when we read this paragraph, we understand that Paul is giving praises to God. Paul is giving thanks to God. और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम ये बात को जान सकते हैं कि यहाँ पर पौलुस जो है वो परमेश्वर की बड़ाई करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है. You know, when he is writing to this church in Ephesus, he is beginning his letter by thanking God for different things that he has done. और जब पौलुस इफिसियों की कलीसिया को ये पत्री लिखता है तो वो पत्री की जो शुरुआत है वो परमेश्वर को धन्यवाद देकर करता है अलग अलग बातों के लिए. So let's go quickly and we understand, we will meditate 4 points for the reason for which we should be thankful today. और इसके ऊपर हम मनन करते हैं और 4 बातों को हम सीखेंगे कि किन बातों के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद. The first thing, पहली बात, be thankful for God's blessings. परमेश्वर की जो आशीष है उसके लिए धन्यवाद. You know, when we shared about all the testimonies, it's all about God's blessings, right? और जब हमने जितनी भी गवाहियां सुनी है वो परमेश्वर की आशीषें हैं जो हमारे जीवन में आई हैं. Some people got new houses. कि कुछ लोगों को नए घर मिले हैं. Some got new job. कुछ लोगों को नई जॉब मिली है. You know, some got good health. कुछ लोगों को अच्छा सेहत मिली है. You know, it's all blessings from God. और ये सारी की सारी जो आशीषें हैं परमेश्वर की ओर से. But the blessings
blessings that I am going to talk today is quite different from all these blessings. लेकिन जिन आशीषों के बारे में आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे वो इन आशीषों से अलग है। Chapter 1 verse 3, give your attention to chapter 1 verse 3. इफिसियों पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत। It says, praise to be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms in every spiritual blessing in Christ. वो कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। Hallelujah. हालेलुया। So here also Paul is talking about a blessing. यहाँ पर पौलुस जो है एक आशीष के बारे में बातचीत कर But रहा है। as I wrote it here, it is spiritual and it's heavenly blessing. और जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये एक आत्मिक और एक स्वर्गीय आशीष के समान है। You know, we all want these earthly blessings. हम सब चाहते हैं कि इस धरती पर हमको आशीष No, we मिले। want our lives to be good. हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो। We want to get good promotion in our jobs. हम चाहते हैं कि हमारी नौकरियां जो है उसमें हमको You know, बढ़ोतरी मिल रहे। we want to expand our family. हम अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। You know, but when Paul is writing to this church, he is reminding them about the spiritual blessing that we all must keep in mind. लेकिन पौलुस जब इस कलीसिया को लिखता है तो वो उनको उन आत्मिक आशीषों के बारे में याद दिलाना चाहता है कि जो हमें अपने ध्यान में रखनी And if you चाहिए। read the whole chapter, the whole book of Ephesians, there is there is different aspects like spiritual and physical. Paul is talking more about spiritual and physical aspects in this letter. यदि आप इफिसियों की पत्री को पूरा पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि पौलुस जो है अलग-अलग बातों के बारे में बातचीत कर रहा है। वो सांसारिक बातों और आत्मिक बातों दोनों के बारे में बातचीत You know, करता है। as in chapter 6, we know the armor of God, the spiritual armor that we all must have. और छठे अध्याय में हम जानते हैं पौलुस बताता है कि हमें किस प्रकार से जो परमेश्वर का जो आर्मर हमें लेके रखना होता है, जो अपने को बचाने के लिए हमें चाहिए होता है, उसकी जरूरत है। You know, so when he is talking about blessings, he is making the focus of the church to come towards the spiritual aspect of those blessings. और यहाँ पर जब पौलुस आशीषों के बारे में बातचीत कर रहा है तो वो चाहता है कि कलीसिया का ध्यान इन आत्मिक आशीषों की ओर जाए। So let's see carefully how we are blessed in spiritual realm. तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि हम स्वर्गीय स्थानों में किस प्रकार से आशीष पाते You know, हैं। we praise God for Jesus Christ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए, because in him we are blessed in heavenly realms, क्योंकि उसके द्वारा हमें स्वर्गीय स्थानों में आशीष मिली है। and in every blessings that we can imagine in Jesus Christ. और वो हर प्रकार की आशीष जिसके बारे में हम सोच सकते हैं यीशु मसीह में मिली है। You know, the blessings of salvation, हमारे उद्धार की जो आशीष है वो the हमको मिला है। blessing that we grow in him, उस प्रकार की आशीष की हम उसमें बढ़ सकते हैं। the blessing in which we know Jesus to be our Lord and Savior. एक आशीष जिसके द्वारा हम यीशु मसीह को जान सकते हैं कि वो हमारा उद्धार You know, करता परमेश्वर that है। is real blessing, my dear और church. ये सही मायने में आशीष You know, है। I don't want to discourage any one of you here now. मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार से निराश नहीं करना You know, चाहता। all the blessings that we had shared here today is temporary. और जो भी आशीषें आपने आज यहाँ पर बातचीत करी है वो इस धरती की है, वो टेम्पररी है। You know, when you leave this earth and go, your houses will be remained here. An earthquake come, it's gone. You know, everything is temporary, but this spiritual blessing is there forever. इस संसार में, इस धरती पर जो भी हमारी आशीषें होती हैं वो टेम्पररी होती हैं, क्योंकि चाहे वो हमारा मकान हो या और भी बाकी आशीषें हमने बात की हैं, वो केवल इस धरती पर रह जाएंगी। जब हम यहाँ से निकल कर जाएंगे वो आशीषें यहीं पर रह जाएंगी। But God is telling us, my dear child, I have blessed you spiritually and be thankful for it. लेकिन परमेश्वर हमको बताता है, मेरे प्रिय पुत्र, मैंने तुम्हें आशीषित किया है आत्मिक रीति से और उसके लिए तुम धन्यवाद देते हो। And what is the greatest spiritual blessing that we have today? और सबसे बड़ी आत्मिक आशीष क्या है जो हमारे पास है? Verse 4 it says, for he chose us in him before the creation of the world. और चौथी आयत हमें बताती है, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया। You know how beautiful it is to understand that God, even before creating the creation, he had chosen us. ये कितनी सुंदर बात है। इस बात को यदि हम सोचें कि संसार या सृष्टि बनाने से पहले परमेश्वर ने आपको और मुझको चुन लिया। And how he chose us, और उसने कैसे चुना, and why he chose us. और उसने क्यों हमको चुना। The verse gives us the answer. It says to be holy and blameless in his sight. और उसने वचन हमको बताता है कि उसने हमको चुन लिया कि हम उसके समक्ष
प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। So I want to ask you a question today. और मैं आज से आपसे एक सवाल पूछना What is चाहता the हूँ। greatest blessing you have today? आज आपके पास सबसे बड़ी आशीष क्या है? That we were made holy and blameless in God's sight. कि हमको पवित्र और निर्दोष बनाया गया परमेश्वर के समक्ष। The God who is the holy of holies. परमेश्वर जो वो सबसे पवित्र है। And he is saying, in my sight, my dear child, you are holy and blameless. और वो हमको कहता है कि मेरी नजर में मेरे प्रिय पुत्र तुम निर्दोष हो। So for this reason we must thank God. और इसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना God चाहिए। had chosen us before the creation of this world. परमेश्वर ने संसार की रचना करने से पहले हमको चुन लिया था। Jesus, while talking to his disciple, he said, "You did not choose me, but I have chosen you." यीशु मसीह जब अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे तो उसने उनसे कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। God has made us holy and blameless before his sight. परमेश्वर ने हमको पवित्र और निर्दोष बनाया अपने सामने। The word of God says, "The blood of Christ washes away all our sins and makes us holy." परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि यीशु का लहू हमको पवित्र और निर्दोष The बनाता second reason for us to be thankful. है। और दूसरी बात कि जिसके लिए हमें धन्यवादित होना Be चाहिए। thankful for God's love. परमेश्वर के प्रेम के लिए हमें धन्यवादित Verse होना चाहिए। 5 and 6. इसकी 5वीं और 6ठी आयत You को know, हम देखेंगे। it says, "In love, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace, which he has freely given to us in the one he loves." और इसकी 5वीं 6ठी आयत इस प्रकार कहती है, उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा लोपालक पुत्र होने के लिए ठहराया, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस अति प्रिय में सेंत में दिया। Hallelujah. हालेलुया। So here also I want you to be very careful when you are reading this verse. और इस वचन को जब आप पढ़ते हैं तो ध्यान से इसको देखिए। In love, God has predestined us. परमेश्वर ने अपने प्रेम में हमारा पहले से ही चुनाव किया। And what is the reason for him to predestine us? और उसका ये चुनाव करने का कारण क्या था? To adopt us to be his children. ताकि वो हमको गोद ले सके अपने बच्चों के समान। You know, the first part it says, even before the creation, he has chosen us to be holy and blameless. इसका जो पहला भाग है वो हमको बताता है कि संसार की रचना करने से पहले उसने हमें चुन लिया कि हम पवित्र और निर्दोष ठहरे। And now the word is saying, he had predestined us to be his children. और वचन अब हमको बताता है कि उसने ये पहले से ही तय कर लिया था कि हम उसके पुत्र और पुत्री बनेंगे। Which means if you want to be the children of God, you need to be holy and blameless. जिसका मतलब ये है कि यदि आपको परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनना है तो आपको पवित्र और निर्दोष होना जरूरी है। Without holiness, no one can reach the presence of God. पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर के समक्ष नहीं आ So सकता my dear है। church, give thanks to God for this reason of love that had predestined us to be his children. और प्रिय कलीसिया, इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर का प्रेम जिसने हमारा पहले से ही चुनाव कर लिया कि हम उसके पुत्र और पुत्री You बन know, as I said, without holiness, you cannot be in the presence of God. और जैसा मैंने कहा कि पवित्रता के बिना आप परमेश्वर के समक्ष नहीं जा So सकते how हैं। are we made holy? तो हम पवित्र कैसे बनाए You know, जाते that's हैं? what verse 6 says. और 6ठी आयत वो हमको To the बताती praise है of his glorious grace, which he has freely given to us in the one he loves. और वचन 6ठी आयत हमको बताती है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस अति प्रिय में सेंत में दिया। You know, some translation it says he has given us this grace lavishly. और कुछ जो ट्रांसलेशंस हैं वो इस प्रकार बताती हैं कि उसने बहुत उदारता से हमें ये अनुग्रह You दिया know, है। you know the word lavish, right? आप उदारता को जानते You know, हैं। when we see the weddings that happens in our country, जब हम अपने देश में जो विवाह होते हैं उनको देखते you हैं know, when the procession is going on, they would just throw away money for the people, और right? जब वो बारात जारी होती है तो हम देखते हैं कि लोग कैसे पैसों को उछालते हैं। You know, God's grace is more lavish than that. और परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो उससे भी ज्यादा उदारपूर्ण है। You know, because our sins are so deep and so dark, we wanted this lavish grace of God to be made holy. हमारे जो गुनाह है वो इतने गहरे और इतने अंधकार में है कि हमें
हमें परमेश्वर की इस उदारपूर्ण दया की जरूरत है कि हम पवित्र बनाए जा And सकें। how did he reveal this grace to us? और उसने ये जो अनुग्रह है उसको कैसा जाहिर किया? You know, Paul write it in a very mysterious way. He is not revealing Jesus there, but it's mentioned, Jesus is mentioned there. और लेकिन पौलुस यहाँ पर हमको एक बहुत रहस्यमय तरीके से यीशु के बारे में बताता है। यीशु का नाम वहाँ पर दिया नहीं गया, लेकिन पौलुस हमको उसको जाहिर He करता है। says that he has freely given to us in the one he loves. और उसने यहाँ पर इस प्रकार किया है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस अति प्रिय में, The one he loves, who is that one? That one is Jesus Christ. और जिससे वो प्रेम करता है, जिस अति प्रिय की यहाँ पर बातचीत हो रही है, वो कौन है? वो यीशु मसीह So I है। want to make this clear for all of us. और मैं यहाँ पर आप सबके लिए इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। God loves Jesus so much, परमेश्वर यीशु मसीह से इतना प्रेम करते हैं, and in that love the grace of God is being revealed to us, और उस प्रेम में परमेश्वर का अनुग्रह हम पर जाहिर होता and है, because of that grace we are made to be his children. और उस अनुग्रह की वजह से हम उसके पुत्र और पुत्री बन जाते No, हैं। my dear church, it's so beautiful, it's so important for us to understand the love of God has saved us. और ये बहुत ही सुंदर है और ये बहुत जरूरी है हम सबको जानना कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम बचाए गए। So as we end this year 2023, let us be thankful to God for the love that he has lavished on us. तो 2023 को जब हम समाप्त करते हैं तो इस बात को हम याद रखें, परमेश्वर के उस प्रेम को जो उसने उदारतापूर्ण हमारे लिए दिया। The third reason why we should be thankful to God. और तीसरी बात कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए? Be thankful for God's redemptive work. परमेश्वर का धन्यवाद करें परमेश्वर के छुटकारे के कार्य के लिए। Verse 7 it says, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace that he lavished on us. और इसकी जो 7वीं आयत है वो हमें बताती है, हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। See how God's redemptive work came to pass. परमेश्वर का जो छुटकारे का कार्य है वो हमारे पास कैसे आया? Through the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। We know, right? When we believe in the sacrifice and the resurrection of Jesus Christ, we are saved. जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान और उसके पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम बचाए जाते हैं। You know, through that only our sins are forgiven. उसके द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा हमको मिलती है। In accordance with the riches of God's grace. और परमेश्वर के अनुग्रह के जो बहुतायत से जो अनुग्रह है परमेश्वर का वो हमको मिलती है। And verse 8 says, this grace, again it says, he had lavished it on us. और 8वीं आयत वो बताते हैं हमको कि ये जो अनुग्रह है उसने बहुत ही उदारतापूर्ण हमको दिया। So let's go back and imagine the cross where Jesus was crucified. तो हम वापस जाकर उस क्रूस के बारे में सोचते हैं जिसके ऊपर यीशु मसीह को चढ़ाया गया था। A man who was blameless. वो इंसान जो कि निर्दोष था। He was being trialed by different people, asked question by different people, but no one was able to bring any fault against him. बहुत से अलग-अलग लोगों ने उससे सवाल जवाब किए लेकिन कोई भी उसमें कोई भी दोष नहीं पा सकता था। Yet they crucified him. लेकिन फिर भी उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। He shed his blood on that cross. उसने अपना लहू उस क्रूस पर बहाया। And the word of God says, by that blood you are being redeemed. और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उस लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिला। It's not because of what you have done, my dear church. It's because of the blood that was shed on the cross that we all are redeemed. और आपको छुटकारा आपके अपने किसी कार्य की वजह से नहीं मिला है बल्कि उस खून के द्वारा उस लहू के द्वारा मिला है जो यीशु ने क्रूस पर बहाया। Do we give thanks to God for this redemptive work? क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस छुटकारे के कार्य के लिए? Today also we are going to take part in this table. It reminds us about the sacrifice of the cross. आज भी हम प्रभु भोज में शामिल होंगे जो हमको परमेश्वर के बलिदान के बारे में बताता है। But are we giving thanks to God for this ultimate sacrifice? लेकिन क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सर्वोच्च बलिदान के लिए? Without God our sins will not be forgiven. परमेश्वर के बिना हमारे पाप जो है वो क्षमा नहीं And if हो our सकते। sins were not been forgiven, we will not be made holy and blameless. और यदि हमारे पाप क्षमा नहीं किए जाते हैं तो हम परमेश्वर के समक्ष निर्दोष और पवित्र नहीं So बन if we are सकते। not made holy and blameless,
we will never be, we will never be called as children of God. और यदि आप पवित्र और निर्दोष नहीं होते हैं तो आप कभी भी परमेश्वर के पुत्र या पुत्री नहीं कहलाएंगे. So my dear church, not only this year, every moment of our life, let us be thankful to God for the sacrifice that He has done for us. तो प्रिय कलीसिया, केवल इसी साल में नहीं लेकिन हर साल में, हर क्षण में अपने जीवन में आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है कि उसके बलिदान के द्वारा आपके पाप क्षमा किए गए हैं और आप छुड़ाए गए. The last thing, why we should be thankful. और आखिरी बात कि हमें धन्यवाद क्यों करना चाहिए. Be thankful for God's revelation. परमेश्वर का धन्यवाद करो कि उसने स्वयं को हम पर जाहिर किया. Second part of verse 8 through verse 10, it says, with all wisdom and understanding, He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ, to be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. और इसकी 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक वो इस प्रकार हमें बताता है, जिसे उसने समस्त ज्ञान और समझ से उसने हमें अपनी इच्छा का रहस्य अपने भले अभिप्राय के अनुसार जिसे उसने स्वयं निर्धारित किया था बताया, ऐसे प्रबंध का उद्देश्य से कि समयों के पूरे होने पर वह सब कुछ जो स्वर्ग और पृथ्वी पर है मसीह में एकत्रित किया जाए. Hallelujah. हालेलुया. The word of God says, Paul writes to the church that God has revealed His mystery to us in these days. पौलुस जो है यहाँ पर कलीसिया को लिखता है कि परमेश्वर ने अपनी जो रहस्य है उसको हम पर जाहिर किया. This word means the things about Christ which were secret or unknown to the people of Old Testament but now being revealed to us. और यहाँ पर जो रहस्य की बात पौलुस करता है वो पुराने नियम की उन बातों के बारे में है जो कि उस समय यीशु मसीह के बारे में थी लेकिन लोग नहीं जान पाए थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आने के द्वारा उसने इन बातों को हम पर जाहिर किया. The people in the Old Testament, the people before Jesus Christ, they also wanted to know about their Savior. और पुराने नियम में जो लोग थे वो भी अपने उद्धारकर्ता को जानना चाहते थे. But the things about Jesus Christ were not revealed to them. लेकिन यीशु मसीह के बारे में जो बातें थी वो उनके ऊपर जाहिर नहीं की गई थी. They were searching for that Savior. और वो उस मसीहा की खोज करते रहे थे. But Paul says, in Jesus the mystery were being revealed to us. और पौलुस कहता है कि यीशु मसीह में वो सारे रहस्य हम पर जाहिर कर दिए गए. And that is God's pleasure. It says, it gives pleasure to God when He revealed that mystery to us in Christ Jesus. और वचन हमको बताता है कि ये परमेश्वर को भाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है जब वो यीशु मसीह में ये सारे रहस्य हम पर जाहिर करता है. It's like we have a beautiful gift for our children. We have packed it nicely and we are giving it to them. And when they are opening it, their excitement is growing and we are also feeling happy, right? My child is going to know what the gift is going to be. और ये उस तोहफे के समान है जो हम अपने बच्चों को देते हैं, उसको अच्छे से पैक करके देते हैं. और जैसे हमारे बच्चे उन तोहफों को खोलते हैं और उनकी जो एक्साइटमेंट होती है, उनकी जो जिज्ञासा होती है उसके बारे में जानने के लिए, वो हमको कितना आनंद देता है कि हमारा जो बच्चा है वो उस तोहफे को देखेगा, खुश होगा. So which means God is being pleased when we are knowing more about Jesus Christ. तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को आनंद मिलता है, परमेश्वर को बहुत ही अच्छा लगता है जब हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं. He is so glad my child is getting to, my child is spending his time to know more about me. He is reading the scriptures and he is understanding about me. ये उसके लिए एक आनंद का विषय है जब वो देखता है कि उसका बेटा या उसकी बेटी यीशु मसीह के बारे में जानना चाहता है, वचन का अध्ययन करता है और उसके और अधिक करीब आने की कोशिश करता है. There are some mysteries that are being revealed to us which are yet to happen. और कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हम पर जाहिर किए जाते हैं जो अभी होने वाले हैं. We know our future, right? और हम जानते हैं कि भविष्य में क्या होगा. We are certain that this is how this will happen. और हम जानते हैं कि भविष्य में ये इस प्रकार से ही होगा. We know that Jesus is going to come back. हम जानते हैं कि यीशु मसीह दोबारा से आएगा. And we know that we are going to be with him forever, ruling with him for eternity. और हम जानते हैं कि हम उसके साथ होंगे अनंत काल के लिए और राज्य करेंगे उसके साथ. And we also know, as it says in verse 10, it says, in the time reach their fulfillment, something will happen. What will happen? God will bring unity to all things in heaven and on earth
under Christ. और यहाँ पर वचन 10वीं आयत में हमको बताता है कि जब समय पूर्ण होगा कुछ होगा, और वो क्या होगा कि परमेश्वर उन सारी बातों को, उन सारी चीजों को जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पे है, उनको मसीह के नीचे उसके नियंत्रण में लेकर My आएगा। dear church, Paul, in two of his letters, Paul writes this word, when the time will be fulfilled. और प्रिय कलीसिया, पौलुस अपनी 2 पत्रियों में इस बात को लिखता है कि जब समय पूर्ण हो जाएगा। In one letter, he wrote it in a past tense. He write, when the time was fulfilled, God sent His Son. It is in Galatians chapter 3. और गलातियों की पुस्तक उसके 3रे अध्याय में पौलुस इसको जो है वो भूतकाल में इसको बात करता है कि जब समय पूर्ण हो गया था। When the time was fulfilled, God sent His Son. जब समय पूर्ण हो गया था, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। Here Paul is writing, when the time will be fulfilled, God will come again. He's not going to come as a child. He will come as a king under whom the heavens and earth subdue. और यहाँ पर भी पौलुस जो है वो बताता है कि जब समय पूर्ण हो जाएगा, ये भविष्य की बात करता है। वो कहता है कि परमेश्वर आएगा, और इस समय वो बालक के समान नहीं आएगा, एक राजा के समान आएगा जो कि न्याय करने आएगा हर एक चीज का। And that's what the word of God says. Every knee shall bow and every tongue confesses that Jesus is the Lord. और इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जुबान इस बात का अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह परमेश्वर My है। dear church, this is a mystery for those who have not heard it. और प्रिय कलीसिया, ये बात जो है उन लोगों के लिए एक रहस्य है जिन्होंने इसको अभी तक नहीं सुना। But praise to God, we know it, we have heard it, we are reading about it, so we must thank God for the revelation that He has revealed to us. लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि इस बात को हम जानते हैं, हमने इसको पढ़ा है और हम इस पर विश्वास करते हैं कि ऐसा होगा, और इसके लिए हम परमेश्वर का You know, धन्यवाद it's so sad to see even those people who call themselves to be a Christian or not knowing about this Jesus Christ who is going to come as a king. और ये बहुत दुख की बात है कि वो लोग जो अपने आप को मसीह बुलाते हैं वो भी इस बात को नहीं जानते हैं या इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह जो है एक राजा के समान आने वाला But है। let us thank God because He has revealed this to us. लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने इस बात को हम पर जाहिर किया है। And when we certainly know what our future is going to be, we will also know how we should live so that we can reach to that future. और जब हम जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, इस बात पर हम विश्वास करते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि उस भविष्य में हम किस प्रकार से पहुंचेंगे। So 4 things we have seen today. और 4 बातें हमने आज देखी हैं। Alan, can we go from the first point one second, please? हम पहले वाले पॉइंट से So what देखेंगे। is the first reason that we should be thankful for? तो सबसे पहली बात क्या है जिसके लिए हमें धन्यवाद I want you करने all की to जरूरत है? read. आप सब बोल सकते हैं। We should be thankful to God for God's blessing. परमेश्वर की आशीषों के लिए हम उसका धन्यवाद And what is करें। the second thing? और दूसरी बात, For God's love. परमेश्वर के प्रेम के लिए। And what is the third thing? और तीसरी बात, परमेश्वर का छुटकारे का कार्य। And what is the fourth thing? और चौथी बात, For the revelation that God has revealed to us. जो रहस्य परमेश्वर ने हम पर जाहिर किया है। My dear church, we all thank God for all that He has done in our life today. और प्रिय कलीसिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन सब बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन You में know, किया है। many times when we thank Him about the things that we are seeing, we are forgetting to thank Him for the things which are unseen. और बहुत सी बात ऐसे होता है कि जो चीजें हम देख सकते हैं उसके लिए तो हम परमेश्वर का धन्यवाद कर देते हैं, लेकिन जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं उसके लिए हम धन्यवाद करना भूल जाते Thank हैं। Him for the salvation that He has freely given to us. उसके अनुग्रह के लिए, उसके उद्धार के कार्य के लिए हम धन्यवाद करें जो उसने हमको मुफ्त में दिया है। Thank Him for the love that He has granted upon us. उसके प्रेम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जो उसने हम पर किया है। Thank God for Jesus Christ. परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद करें। Let us all stand in God's presence. आइए हम सब खड़े हो जाएं परमेश्वर के As समक्ष। we enter into a new year, जैसे हम नए साल में प्रवेश करते हैं, let us bring all these thoughts into our minds and let us be mindful to thank God for the spiritual blessings that we have received from Him. जब हम इन सब बातों को याद रखते हैं तो अपने हृदय में, अपने मन में हम इन बातों को लेकर आए जो आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने हमको दी हैं, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद My करें। dear church, it's our duty, it's the least that we can do to thank our Father. और ये हमारी एक तरह से हमारा कर्तव्य है और ये बहुत कम है जो हम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं जिसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। As we prepare ourselves for the table,
let us commit, let us surrender ourselves before Him so that God can take control of us. और जब हम अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार करते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन पे और हमारे ऊपर कंट्रोल